Hello everyone, I am Deepjyoti Mahanta from studyinggeology.com. Today we will be discussing few numericals from hydrogeology. This is very important for JAM 2021. So if you're new to my channel, do subscribe and hit the like button, which motivates me to upload new videos. Also stay subscribed and share with your friends. So we will be discussing numericals on Darcy's experiment today. So let's start with the Darcy's experiment. Henry Darcy was a French engineer and he wanted to study the movement of water through a porous medium. For this, he used a pipe and filled this pipe with sand particles which were used for the filtration of water at that time. ठीक है, तो उसने इस पाइप को sand particles से fill कर दिया and he wanted to study the flow of water from point A to point B. ठीक है. So during this experiment, he said that the volumetric discharge of water, that means Q is directly proportional to the difference in height at point A and point B. So which is represented by HA minus HB. That means if HA is 10 meter and HB is at a height of 5 meter, so Q will be directly proportional to this difference. That means 10 minus 5 will be 5. The next thing he said is ये जो हमारा Q है वॉल्यूमेट्रिक डिस्चार्ज इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम मीन्स दिस पॉइंट्स A and B. ठीक है, A and B का जो डिस्टेंस है that will be inversely proportional to the volumetric discharge. Also the area of cross section of the pipe used, जो उसने पाइप यूज किया उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है. सो ही सेड Q इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप. ठीक है, बाय यूजिंग दिस थ्री equations 1, 2 and 3 हमें क्या मिलेगा Q is directly proportional to HA minus HB divided by L and it is also directly proportional to the A. So Q is directly proportional to A HA minus HB. और अगर हमें इस proportionally constant को remove करना होगा so there has to be a अगर इस means proportionality सिंबल को हटाना है तो हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना पड़ेगा. ही यूज द अल्फाबेट के. Q इज इक्वल्स टू के ए एच ए माइनस एच बी बाय एल. सो दिस वाज हिज इक्वेशन. ओके, दिस वाज द डार्सीस इक्वेशन. के जो है हमारा दैट इज आवर hydraulic conductivity. K is our hydraulic conductivity which will be dependent on the type of porous medium the water is traveling. Means K will be different for different particles. For example, K will be different for the clay particles, K will be different for the sand particles and silt particles. Okay, so उसने हमें क्या इक्वेशन दिया? The volumetric discharge of water that is represented by Q is equals to KA HA minus HB by L. Also he used a symbol minus. इसके सामने उसने एक माइनस सिंबल भी यूज किया. द माइनस सिंबल इसीलिए यूज किया सो ही वांटेड टू से दैट द वाटर इज मूविंग फ्रॉम अ हायर हाइट टू अ लोअर हाइट. जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि वाटर इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. सो दिस रिप्रेजेंट्स कि हमारा वाटर मूव कर रहा है एक हायर एंड से लोअर एंड की तरफ. ठीक है, सो इफ वी आर कैलकुलेटिंग this Q value for any question the answer will be in minus but we don't have to use the minus sign. ठीक है, हमें इस माइनस साइन को न्यूमेरिकल में नहीं यूज करना है अदरवाइज हमारा आंसर क्या नेगेटिव में निकलेगा. ठीक है, सो इक्वेशन में माइनस है बट वी हैव टू इग्नोर इट फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस बिकॉज दिस माइनस इज ओनली यूज फॉर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द वाटर. सो हम लोग न्यूमेरिकल्स में क्या यूज करेंगे? Q इज इक्वल्स टू के ए एच ए माइनस एच बी बाय एल. ठीक है, तो ये है हमारा हाइड्रोलिक हेड डिफरेंस एच ए माइनस एच बी. एल इज द लेंथ बिटवीन द 2 points A and B. A is the area of cross section of the pipe. ठीक है, and K is the proportionally constant which is also known as hydraulic conductivity. ठीक है, तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला? दिस हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी K will be different for different particles. ठीक है, सो ये जो हमारा फॉर्मूला था Q इज इक्वल्स टू माइनस के ए एच ए माइनस एच बी बाय एल. इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ द चेंज इन हाइट इज वेरी स्मॉल सो फॉर एच ए माइनस एच बी वी कैन राइट dh, that means small change in height. By if the length is also small we can write
डी एल इन केस ऑफ एल, ठीक है। सो वी कैन रीराइट द इक्वेशन लाइक दिस, क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए डी एच बाई डी एल, ठीक है। सो ये जो क्यू है इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ठीक है। सो इफ आई राइट क्यू बाय ए माइनस के डी एच बाई डी एल, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस क्यू बाय ए इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक डिस्चार्ज, स्पेसिफिक डिस्चार्ज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल क्यू, ठीक है। स्मॉल क्यू से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो हमारा इक्वेशन विल बी क्यू इज इक्वल टू माइनस के डी एच बाई डी एल। सो हमें क्या क्या इक्वेशन मिला, फर्स्ट इक्वेशन इज क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए एच ए माइनस एच बी बाई एल। सेकेंड इज क्यू बाई ए इज इक्वल टू माइनस के, सॉरी, क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए डी एच बाई डी एल, ये दोनों तो सेम ही है। एंड द थर्ड इक्वेशन इज क्यू बाई ए इज इक्वल टू माइनस के डी एच बाई डी एल। ये जो हम क्यू बाई ए है इसे हमें हम क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक डिस्चार्ज विच इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल क्यू। सो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस के डी एच बाई डी एल, ठीक है। ये जो स्मॉल के है इट इज ऑल्सो नोन एज डार्सियन वेलोसिटी, इसको हम लोग डार्सियन वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, या तो हम लोग इसको स्पेसिफिक डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो इफ यू वांट टू रीड अबाउट दिस प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड दिस, ओके। एंड आई हैव ऑलरेडी सेड दैट ये जो के है, के को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि डार्सी का इक्वेशन क्या है, स्पेसिफिक डिस्चार्ज क्या है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या है। और एंड आई हैव सेड कि अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को ये माइनस सिंबल नहीं लेना है। सो आई वोंट बी यूजिंग दिस माइनस सिंबल बिकॉज इट इज ओनली शोइंग अस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो इसमें बोला क्या है, टू वर्टिकल वेल्स पेनिट्रेटिंग अ कन्फाइंड एक्विफर आर 200 मीटर। तो बोल रहा है कि दो वर्टिकल वेल है ए और बी, ठीक है। तो इनका जो डिस्टेंस है बोला दिस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस है 200 मीटर और ए का हाइट क्या है 35 मीटर एंड बी का हाइट कितना है 40 मीटर, ठीक है। सो दिस इज गिवन, दैट मीन्स वाटर विल बी फ्लोइंग फ्रॉम बी साइड टू ए साइड, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं शॉर्ट बना देता हूँ। above a common reference of datum, the discharge per unit area through the aquifer is 0.05 मीटर पर डे। हमें क्या दिया है, डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया। मैंने बोला क्या था, डिस्चार्ज मीन्स डिस्चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, बट यहाँ पे हमें क्या दिया है, डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स वी हैव बीन गिवन क्यू बाय ए, कितना दिया है हमको 0.05 मीटर पर डे। सो क्यू वैल्यू इज गिवन स्मॉल क्यू, specific discharge is equal to 0.05 meter per day. Using Darcy's law, the coefficient of permeability is dash meter per day. तो हमें निकालना है coefficient of permeability. That means we have to find out the value of K. ठीक है। तो हमें हेड का डिफरेंस मालूम है, हेड का डिफरेंस क्या है 40 माइनस 35। तो हम लोग लेते हैं DH इज इक्वल टू 40 माइनस 35 इज इक्वल टू 5 मीटर और हमें क्या दिया है, लेंथ कितना है 200 मीटर। सो हम लोग ले लेंगे कि डी एल इज इक्वल टू 200 मीटर। नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू के डी एच बाई डी एल। दिस इज वेरी सिंपल। तो क्यू की जगह हमें लिखेंगे 0.05 मीटर पर डे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। के का वैल्यू हमें निकालना है, डी एच बाई डी एल कितना है, डी एच है हमारा 5 बाई डी एल कितना है 200, ठीक है। डी एच बाई डी एल का कोई यूनिट नहीं होगा बिकॉज दिस इज ए रेशियो ऑफ मीटर बाय मीटर। सो लेंथ बाय लेंथ मीन्स दिस विल बी डी एच बाई डी एल विल बी अ रेशियो, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, डी एच बाई डी एल का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, दैट मीन्स इट इज नॉन डायमेंशनल, ठीक है। तो इधर बस है, इसका हमें क्या दिया था क्यू मीटर पर डे में दिया था, ठीक है। सो नाउ विल
कैलकुलेट दिस। तो के का वैल्यू क्या आएगा, के इक्वल्स टू 0.05 इंटू 200/5। तो इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, आवर आंसर विल बी 200 डिवाइड बाई 5 कितना आता है, 200 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 40, 40 इंटू 0.05 विल बी 2। ठीक है, सो हमारा आंसर है 2। आवर द वैल्यू ऑफ के इज 2 मीटर पर डे। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो के को हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बोल रहे हैं, और के इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, के हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं, के को कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या बोला है, कन्फाइंड सैंडस्टोन एक्विफर विद अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 7 मीटर स्क्वायर। तो बोला है क्या, ए कितना है, ए इज इक्वल्स टू 7 मीटर स्क्वायर एंड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दिया है इस बार, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो के का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड। ट्रांसमिट्स वाटर अक्रॉस ए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ 3.2। हमें क्या बोला है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 3.2 है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मीन्स व्हाट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मीन्स dH/dl। ठीक है, इसको हम लोग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी बोलते हैं। सो दिस इज गिवन 3.2। हमें निकालना क्या है, एज्यूमिंग स्टेडी स्टेट डायरेक्शन फ्लो द वॉल्यूमेट्रिक रेट फ्लो रेट थ्रू द एक्विफर इज कितना। ठीक है, हम लोग को वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पूछ रहा है, दैट मीन्स क्यू। ठीक है, इसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी बोलते हैं, इस क्यू को। ठीक है, सो क्यू इज इक्वल्स टू के ए dH/dl। फॉर्मूला तो हमको मालूम है। ठीक है, सो क्यू इज इक्वल्स टू कितना होगा, के का वैल्यू है 2, ए का वैल्यू है 7, dH/dl इज 3.2। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, 14 इंटू 3.2, 14 इंटू 3.2 विल बी योर 44.8। ठीक है, तो हमें क्यू निकालना है, क्यू का भी यूनिट कैसे पता चलेगा, ऐसे तो हमें दिया है, फिर भी हाउ टू कैलकुलेट। के इज गिवन इन मीटर पर सेकेंड। ओके, के का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनटू 7 जो हमारा एरिया है वो किस में दिया है, मीटर स्क्वायर, और 3.2 का कोई भी यूनिट नहीं है, सो इट विल बी मीटर क्यूब, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, जो कि होगा मीटर क्यूब बाय सेकेंड। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर 44.8। okay, so this is the value of q. now we will discuss the third question. I hope कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये सब बहुत ही सिंपल है। ठीक है, so the third question is an aquifer has a cross sectional area of 1000 meter square। तो बोला एक एक्विफर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1000 meter square। so a is given 1000 meter square and the hydraulic gradient of 0.01 means hydraulic gradient कितना दिया है हमको, dH/dl हम लोग कितना दिया है, 0.01। if water is flowing from aquifer at a rate of 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो बोल रहा है कि इसमें फ्लो रेट भी दिया हुआ है, फ्लो कितना हो रहा है, फ्लो कितना है, जो कि हमारा क्यू है, इट इज 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, डिस्चार्ज भी दिया हुआ है हम लोग को, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लो बोले या एक्विफर का फ्लो रेट बोले, सेम है। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी या हाइड्रोलिक परमेबिलिटी, दैट इज आवर के। इसको हमें फाइंड आउट करना है इन मीटर पर सेकेंड। सो यूनिट्स सबका सेम है, तो हम लोगों को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। पिछले क्वेश्चंस में भी सेम था, यूनिट्स को चेंज करने का कोई जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, इन केस यूनिट्स आर डिफरेंट, आप लोग को खुद चेंज कर लेना है। ठीक है, मीटर का भी सेंटीमीटर में दिया रह सकता है, तो मीटर में चेंज कर ले, मीन्स सबको एक सेम यूनिट्स में लेके आए। ठीक है, नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू के ए dH/dl। ठीक है, तो Q हम लोग को मालूम है, Q है 10, K कितना है, ये जो निकालना है, A है हमारा 1000 इंटू dH/dl कितना है, dH/dl है 0.01। सो K विल बी इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय
1000 इंटू 0.01, ठीक है। तो दिस विल बी 10 डिवाइड बाई, अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 10। सो k इज इक्वल टू 10/10, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 1। सो हम लोग क्या मिला, जो हमारा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चंस पसंद आए करके, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू टेस्ट योरसेल्फ फॉर आईआईटी जैम 2021, डू विजिट आवर वेबसाइट studyinggeology.com, जिसमें आपको कुछ पेपर्स आपको फ्री में मिलेंगे, कुछ आप खरीद सकते हैं अगर आपको फ्री पेपर्स पसंद आए, ठीक है। एंड देयर इज ऑल्सो क्वेश्चन सीरीज फॉर NAT विच यू कैन बाय एट ₹99 ओनली, ओके। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।